हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टॉप 3 मैनेजरियल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसे आप 90 टू 95% एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं और ये वीडियो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ बोनस क्वेश्चंस और टिप्स भी दिए हैं, सो एंड तक देखिएगा। If you are into managerial round, I hope you have cleared your first round of interview, which can be technical. So congratulations for that. चलिए बिगिन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आप 99% श्योर रहिए कि पूछते ही है और हो सकता है आपका तरीका अलग हो, इससे भी बेटर हो। सो यू कैन कमेंट एंड सजेस्ट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो ये क्वेश्चन पूछ के आपको अपना स्पेस देता है, सो आपको इसे यूटिलाइज करना है। और मैं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा नहीं, 2 से 3 या मैक्सिमम उसका 4-5 मिनट लीजिए। तो उसे लगे कि आप ज़्यादा बोल रहे थे, वो खुद इंटरप्ट करे। सो इन दिस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऑलरेडी नोज योर नेम, सो यू कैन स्टार्ट इट विथ योर नेम, मे बी और मे बी नॉट। वट आई प्रेफर इज आई जनरली स्टार्ट लाइक वेयर आई एम फ्रॉम। आप इस क्रोनोलॉजी में जाएं। सो past you can provide your education and experience, then come to present you can provide current role responsibility if you are experienced person, and if you are fresher, then present you can tell what are you looking for and what are your aspirations, and in future you can tell what are you looking for, plans or studies or further learning of your domain. And lastly you can like give some personal touch like hobbies, interest. So chronology ऐसा रहेगा, past, present, future, lastly personal touch. अगर टाइम आपके पास रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तो यू कैन स्टॉप इट इन द फ्यूचर। सो पास्ट में यू कैन गिव योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, स्कूलिंग, कॉलेज, देन after college you got placement, or like whatever you did after college, diploma or in campus placement हुआ, and your experience, your first company and further experience you can add. Then after that come to present. If you are experienced person, then you can describe about your current role and responsibility. And if you are fresher, like what are your aspirations. Coming to future, like what are you looking for and your plans and studies. And so मैं एक एग्जांपल दूंगा। सो यू कैन बिगिन लाइक, मैंने भी ये प्रिपेयर करके रखा हुआ है, एंड घबराइएगा मत, सबको हिचकिचाता है। इवन मैंने देखा है कि 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 15 साल एक्सपीरियंस वाले भी थोड़ा सोचते हैं, घबराते हैं। तो उसमें आपको टेंशन नहीं करना है, उसे ऑलरेडी पता है कि ये कॉमन है, ठीक है। सो मैं एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बोलता हूँ पहले। सो यू ऑलरेडी नो योर एजुकेशन, पास्ट एजुकेशन स्टार्ट विथ योर स्कूल, कॉलेज, how you got placement. Then start it like, I am an XY consultant or analyst with X years of experience, currently working on end-to-end integration projects, supports. I have handled XYZ integrations focusing on performance improvement and data flow optimization. I enjoy solving real world business problems following clean and standard approach. So ये हो गया आपका like current responsibility, and give something your personal touch so that you are following like as I said, I have handled XYZ integration. I enjoy solving real world business problems following clean and standard approach. So like you are giving your own personal touch, so like you like to follow standard approach, ठीक है। And now your future aspirations. I am now looking to join your organization and contribute my skills for continuous growth and client facing challenges. So yeah, and like lastly personal touch, आप अपना हॉबीज़ बता सकते हो। इन द फ्री टाइम आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट और चेस, रीडिंग ब्लॉग्स, या अपने भी कुछ ऐड कर सकते हो। और फ्रेशर्स की बात करें तो यू कैन बिगिन लाइक, या फर्स्ट ऑफ ऑल से योर एजुकेशन starting from school, college. Then you can come to present. Start like, I am an enthusiastic tech professional who recently transitioned into XYZ domain after gaining foundational experience in software development. I am a quick learner and a reliable team player, excited to grow in the role where I can contribute to XYZ domain project and also keep sharpening my skills. ये हो गया आपका पास्ट और प्रेजेंट का ख़त्म। फ्यूचर का भी आपने बोल दिया कि एक्साइटेड टू ग्रो इन रोल आई कैन कंट्रीब्यूट। आप अपने से भी ऐड कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्टली आप अपना पर्सनल टच दे सकते हो कि हॉबीज़, इंटरेस्ट, ओके।
and further studies. So like outside of work I enjoy vlogging, reading, like that. ठीक है. सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ये आप 99% श्योर रहिएगा कि आपको कोई भी राउंड हो, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्निकल और फर्स्ट, देन कमिंग टू मैनेजेरियल और सेकेंड राउंड. मेरा ऐसा था हुआ कि मैंने 5-6 कंपनी में दिया था, जिसमें कि 99% ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये हमें स्पेस देते हैं और हमें हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, कैसा है, समझा पा रहे हैं कि नहीं, ये सब वो टेस्ट करते हैं. तो ये क्वेश्चन आप 99% प्रिपेयर रहेगा. टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन अपने 5 में से 3 इंटरव्यू में तो ज़रूर फेस किया है, और ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर. और ये मैंने फर्स्ट राउंड में नहीं देखा, मैनेजेरियल राउंड में ही होता है. ये मैनेजर आपसे पूछते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन इज, वाई डू यू वांट टू जॉइन अस. एंड वन पॉइंट टू नोट, आप प्रिपेयर रहिएगा. अगर आप टेक्निकल या आपका जॉब्स जो प्रोफाइल है, जॉब डिस्क्रिप्शन, सो आप अपने फील्ड के लिए प्रिपेयर रहिएगा. आप ये मत सोच के जाइएगा कि मैनेजरियल राउंड में आपको जनरल क्वेश्चंस करेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और लाइक व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन 5 years, लाइक दैट. आप अपना टेक्निकल जो आपका डोमेन है उसमें भी आप वेल वर्स्ड होके जाइएगा, आपका जो डोमेन है. सो बी प्रिपेयर्ड. ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि फर्स्ट राउंड जो कि टेक्निकल था वो ओवर हो गया और वो टेक्निकल हम लोग का मैनेजेरियल में नहीं आ सकता. तो ज़रूर मैनेजेरियल में ऐसे पूछते हैं, वो लोग बहुत सारे कंपनी से पूछते हैं, मैंने भी फेस किया है. सो इफ़ मैनेजर आस्क यू व्हाई डू वांट टू जॉइन अस, व्हाट शुड बी योर रिप्लाई. आप कैसे करोगे. तो लाइक आई वुड से थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव गिवन मी, एंड देन आई वुड बिगिन. सो इट विल गो समथिंग लाइक, and yeah, your company could also be product or service based, so according to that I have prepared the answers. So let us see. And yeah, second thing, research your company. आपका जो कंपनी है उसके आप साइट में जाइए, ऑफिशियल साइट में, उसका अबाउट मी पेज में जाइए और रीड करिए. अब ऐसा मत सोच के जाइए कि मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करूँगा, जो होगा बोल दूंगा. ऐसा मतलब अब बहुत ही कम होता है. अच्छे अच्छे कंपनीज आप पूरा ड्रिल डाउन कर देंगे आप पे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो आप अपना जो रिज्यूमे है एंड जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, सो यू हैव टू कनेक्ट इट. अबाउट मी रीड कर लीजिएगा कंपनी का, उससे आपको कुछ तो अनकॉन्शियसली आइडिया होगा. अगर आपको बाई चांस कुछ भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप कुछ ना कुछ आप ऐड कर सकते हो बना के कंपनी के बारे में, अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट अबाउट मी रीड कीजिएगा. एंड ऑल्सो आपका जो रिज्यूमे है एंड जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन इन द सेंस आप अगर आप कंसल्टेंट रोल में जा रहे हो, एसोसिएट रोल में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में जा रहे हो, सो जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका रिज्यूमे, उसके पॉइंट्स कनेक्ट कीजिए. अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे देन यू विल बी एबल टू फॉर्म सम पॉइंट्स लाइक हाउ यू विल ब्रिंग द वैल्यू टू द कंपनी, एंड you can make some, I mean, relate both, so it will be helpful for you. So read the job description and your resume. And resume तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो वो कौन से कंपनी से क्वेश्चन थ्रो कर देंगे. सो इट्स बेटर टू, आई मीन, बी वेल वर्स्ड इन योर रिज्यूमे. या सो रिसर्च योर कंपनी एंड योर जॉब डिस्क्रिप्शन. एंड सो लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्वेश्चन बहुत बार थ्रो किया गया था, इसीलिए मैंने ऐड किया है. सो यू कैन स्टार्ट लाइक, XYZ company is a brand by itself, and I have always admired XYZ's drive towards new innovation and transforming industries. Its global presence allows endless opportunities for learning and growth. I believe this role offers the perfect environment to develop my capabilities and be a part of the growing journey, and so on. And definitely आप भी इसमें अपना कुछ पॉइंट्स ऐड करिएगा जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, आप जिसमें स्ट्रॉन्ग है. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस फॉर दिस वन. And given my background in XYZ, I believe I can contribute meaningfully from day one, like that. ठीक है. और अगर ये product based company है तो I am drawn to the kind of products your team is building, user centric solutions. I want to be a part of company where my work directly contributes improving core product, like that. Okay. So अब freshers में आते हैं. फ्रेशर्स मैंने देखा है कि फ्रेशर्स पहले बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है उनके लिए. आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, कहीं इंटरव्यू को ऐसा ना लगे कि नहीं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगा, टीम में फिट नहीं होगा. सो द की थिंग इज़ बी कॉन्फिडेंट. ओके.
हाँ, सो फ्रेशर आप बिगिन कर सकते हैं ऐसे. एज अ फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड योर कंपनी इज नोन फॉर इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोजर टू डाइवर्स प्रोजेक्ट्स. It perfectly aligns with my learning goal. I believe I'll get the right environment here to grow technically and perform like that. ठीक है. या फिर I want to join your company because it's not just about getting job, it's about building a meaningful career. So freshers आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. सो मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन बताया. टेल मी अबाउट योर सेल्फ और वाई डू यू वांट टू जॉइन अस. एंड कमिंग टू थर्ड. सो थर्ड क्वेश्चन भी मैंने 2 बार ये फेस किया है, उसी के लिए मैंने ये लिखा है. सो इस क्वेश्चन में ना ये आपका इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं. आप टीम में कैसे फिट होगे, आप अपना वॉइस कैसे रखोगे, दूसरे को कैसे समझाओगे, ये मैनेजर आपका टेस्ट करता है और एक सिचुएशन देता है कि क्वेश्चन कैन बी गिवन यू आर असाइंड अ टास्क एंड योर सॉल्यूशन क्लैशेस और योर टीम मेंबर और सीनियर thinks that this is not up to the standard or maybe they're having different solution against yours. So how you will put forward your solution and talk justify your solution. मतलब आपने जो solution put forward किया है वो टीम मेंबर को या फिर आपके सीनियर को सही नहीं लग रहा है, अप टू द मार्क नहीं लग रहा है, या स्टैंडर्ड के साथ या परफॉर्मेंस इशू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. देन द मैनेजर इज आस्किंग यू हाउ विल यू डील इन दिस सिचुएशन. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें आपको आराम से काम रहना है और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं जंप करना कि ये मेरा सही क्वेश्चंस का सही सॉल्यूशन है. ठीक है. आप टीम मेंबर्स को अपना मार्क चढ़ जाएगा, मारने मत लगिएगा. सो यू हैव टू बी काम. डोंट से लाइक माई सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट, मैं तो अपने टीम मेंबर से लड़ जाऊँगा, ऐसा वैसा मत बोलिएगा. देन सो यू कैन से लाइक if any such situation arises or there is a difference of opinion with my teammate, instead of arguing I can initiate one-to-one talk, understand his or her perspective, and then we can mutually agree on a revised approach. Our priority should be delivering best quality deliverables and finishing task on time. Also, I can talk with my lead and give an overview of my approach and my team perspective. कि मतलब आप अपने टीम लीडर या अपने टीम से बात करके उनका भी पर्सपेक्टिव लोगे आप. सो आप ये बता रहे हो कि आप एक टीम मेंबर हो, टीम प्लेयर हो, आप अपने टीम के साथ या टीम लीडर के साथ कंट्रीब्यूट करके उनके साथ बैठ के एक न्यू रिफाइंड वे ऑफ अप्रोच ला सकते हो. सो इसलिए आप बोल सकते हो. ठीक है. सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स. फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सेकंड था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, और थर्ड था एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था कि अगर आपका सॉल्यूशन क्लैश कर रहा है टीम मेंबर के साथ तो आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप जस्टिफाई करोगे. ठीक है. अगर टेक्निकल बंदा इंटरव्यू ले रहा है तो वो रियल टाइम सिनेरियो क्वेश्चंस भी दे सकता है. सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो सो बी प्रिपेयर्ड. दैट्स व्हाई आई सेड टू गो थ्रू योर रिज्यूमे, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो मिलेगा. देन आप मतलब ऑन द स्पॉट बना नहीं सकते हो कि हाँ मैंने ये किया, वो तुरंत पकड़ लेंगे. आप उनको मतलब बेवकूफ़ नहीं बना सकते. ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड विथ योर रिज्यूमे एंड बी वेल वर्स्ड. एंड या हाँ, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में बोनस क्वेश्चंस भी रहेंगे. सो ये क्वेश्चंस तो मैं बता दे रहा हूँ, बट ये मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा रिसर्च करें, आप अपने से प्रिपेयर करें. ठीक है. एंड सो क्वेश्चंस कैन बी हाउ डू यू हैंडल प्रेशर ऑन टाइट डेडलाइंस. Questions can be where do you see yourself in 5 years. Questions can be if you are told to work on weekends with long stretches, will you be willing to do so. ये तो मुझे TCS में ये पूछा था इसने, तो मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया था कि क्या ये मल्टीपल वीकेंड्स में तो नहीं रहेगा, मतलब जैसे लॉन्ग स्ट्रेच में तो नहीं रहेगा, एक वीकेंड तक तो ठीक है. सो क्या ये लॉन्ग स्ट्रेच में तो नहीं रहेगा. तो हाँ, आप क्वेश्चंस पूछिएगा. आप ये मत हेजिटेट कीजिएगा कि अरे मैं उनसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो कहीं ये मेरे एबिलिटी पे डाउट ना करें. सो दे ऑल्सो वांट यू टू बी दे ऑल्सो वांट यू टू आस्क क्वेश्चंस. सो वो भी देखते हैं कि आप उनका क्वेश्चंस कैसे परसीव कर रहे हो, आप क्लियर हो रहे हो नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें क्वेश्चंस कर दिया, उनका कुछ और मतलब था और आपने कुछ और समझा और फट से आंसर दे दिया. नहीं, बिल्कुल नहीं. एक सेकेंड रुकिए, सोचिए, नहीं समझ में आ रहा, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, देन यू आंसर. ठीक है. और लास्टली होगा कि वाई शुड वी हायर यू. दे सी योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल. ओके. सो ये थे बोनस क्वेश्चंस. एंड सो विद दिस वी विल कंक्लूड आवर वीडियो. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन और मोर क्वेश्चंस सो प्लीज़ कमेंट में बताइए. और कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट में लिखिएगा. अगर आपको भी कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट में ऐड कीजिएगा क्वेश्चंस. साथ में अगर इससे कुछ अच्छा आंसर है और
आपको लगता है कि दूसरों को भी मदद मिले तो कमेंट करके लिखिए आंसर। सो इससे मुझे भी और बाकी को भी प्रिपेयर होने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड अगर आपको और कुछ जानना है और किसी और के रिलेटेड वीडियो चाहिए, हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आई होप यू हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय।